Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study with Subhamsa Classes. So, ପିଲାମାନେ ତମ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆଜି ଆମର 10th class ର first ହିନ୍ଦୀ ର first chapter ଆମେ ପଢିବା। ହିନ୍ଦୀର first chapter ଆମେ ପଢିବା, ଠିକ ଅଛି? ବିଷୟ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଷୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ। କଣ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତମ ନାଁ ସହିତ ତମେ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛ ଟିକେ ଦୟାକରି ଜଣାଅ, ଠିକ ଅଛି? ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ କି ଆମ ଭିଡିଓ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଠିକ ଅଛି? ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଜ ଦୟାକରି ତମକୁ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ତମ ନାଁ ସହିତ କଣ ତମେ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆମକୁ ଜଣାଅ, ଠିକ ଅଛି? ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଆମର କଣ ଅଛି ହିନ୍ଦୀର? ଅଛି ଅନମୋଲ ବାଣୀ। କଣ ଅଛି? ଅନମୋଲ ବାଣୀ, ଯୋଉଟା କି ତମେ 9th କ୍ଲାସ ରୁ ପଢିକି ଆସିଛ, ଠିକ ଅଛି? এইଭଳି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ତମେ 9th କ୍ଲାସ ରୁ ପଢିକି ଆସିଛ, ଯୋଉଟା କି ଥିଲା ଅନମୋଲ ମୋତି। ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ନାମ ଥିଲା ଅନମୋଲ ମୋତି, ଏଇଟା ସେଟା ହେଇଯାଇଛି କଣ? ଅନମୋଲ ବାଣୀ ହେଇଯାଇଛି। ସେଟାରେ ବି ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କବିରଙ୍କ ଦୋହା ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲ। କଣ ଏଥିରେ ବି ତୁମେ କବିରଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମର ଦୋହା ରହିବ, କବିରଙ୍କର ହିଁ ରହିବ। ତାହେଲେ କବିର ଦୋହା ବିଷୟ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ କବି ପରିଚୟ ଟିକେ ପଢିଦବା, ଠିକ ଅଛି? କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ ରିକଲ କରିଦବା। ताहले कौन दीची? कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे, बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। लोगों में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव था। विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में झगड़ते थे। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। कभी जाति भेद मूर्ति पूजा बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है। वे बाहरी धार्मिक कर्मकांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। वे तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। वे सदाचार सच्चाई भाईचारे धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है, जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। ताहले कवि परिचय हमर कोन दिला? ताहले कबिरଙ୍କ जन्म केबे हेतला? 1398 मसियारे काशीरे हेइथिला। 9th क्लास रे जेमति देखला कि तांको जन्म काशीर गोटे हिंदू परिवार रे हेइथिला। एथर दिला से कोन गोटे पोखरीर धाରରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। तालाब के किनारे से मिଳିଥିଲେ। କୋଉମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲେ? ଜୁଲାହା ଦମ୍ପତି। ଜୁଲାହା ମାନେ କଣ? ବୁଣାକାର। ଜୁଲାହା means ବୁଣାକାର, ଠିକ ଅଛି? ଲୁଗା ଯୋଉମାନେ ବୁଣନ୍ତି, ବୁଣାକାର ବା ତନ୍ତୀ ଯାହାକୁ କହିବା, ଠିକ ଅଛି? ଜୁଲାହା ମାନେ ହଉଛି ତନ୍ତୀ ବା ବୁଣାକାର। ତାହେଲେ ବୁଣାକାର ଦମ୍ପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ନିରୁ ଆଉ ନିମା। ନିରୁ ଆଉ ନିମା ନାମକ ଜଣେ ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କୁ ପାଇକି ତାଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ, ଯିଏ କି ମୁସଲିମ ଥିଲେ। କିଏ? ସେ ଯୋଉ ଜୁଲାହା ଦମ୍ପତି, ଯେ ବୁଣାକାର ଦମ୍ପତି ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ସେ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କବିଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ଦମ୍ପତି ମାନେ ପାଳିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଉଭୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସେ ମାନୁଥିଲେ। ସେ କଣ ବହୁତ ପାଠ ସାଠ ପଢି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ
ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କହୁଥିଲା ସମାଜକୁ ଦେଖିକି ସମାଜରେ ଚାଲୁଥିବା ରୀତିନୀତି ଚାଲିଚଳନି ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ସେ କଣ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ କଣ କହୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନିରାକାର ରୂପକୁ ମାନିବାକୁ ନିରାକାର ରୂପକୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜାତି ପ୍ରଥା କଣ ଭେଦ ଭାବ ସବୁ ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସେତେବେଳେ କଣ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କ କଣ କବିତା ରଚନା ଦ୍ଵାରା ସେ ସବୁକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ ଗୁଡାକ ରହିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କବିତା ଗୁଡାକ ରହିଲା ସେ କବିତାକୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ବୀଜକ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଂଗୃହୀତ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ବୀଜକ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଂଗୃହୀତ କରିଥିଲେ। तापर देखिए उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। खड़ी बोली मतलब उस समय जो भाषा प्रचलित था माने सेतबेला समय रे समाज रे लोक माने जो कथा सब जो भली भाषा रे कोन कथाबार्ता करूथिले सेई भली भाषा रे तांकर लेखा गुडाक थिला। आउ तांको गुरु के थिले गुरु रामानंद के थिले गुरु रामानंद थिले तांको गुरु जे जहाको कि से बहुत आदर करूथिले। एबे चलो देखिबा हमर दोहार फर्स्ट चरणटी कौन अच्छी देखिए सांझ बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय सांझ है ताके हृदय आप ता माने तांकर जो लेखा गुड़ाक कौन सेतबेले समाज रे जो बड़ी भाबरे कथाबार्ता लोक माने होउथिले सेई बड़ी भाबरे से ही लेखुथिले। ताले से एठी लेखिछंती सांझ बराबर तप नहीं ता माने एठी तार अर्थ देई देइछि। अर्थ रे कोन देइछि हमें फास्ट देखि दबा तापर बुझिबा कौन से कहवाकू चाहिए। अर्थ में देइछि सत्य हमेशा महान होता है संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं कारण बुरा काम करना पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है अर्थात जो हमेशा सच बोलता है उसका हृदय निर्मल है पाप रहित है उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। वे महान होते हैं तत्वदर्शी होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है और पापी का अनादर करता है। ता माने से जो लेखी जदी सांझ बराबर तप नहीं सांझ माने कौन सच बा सत्य ताले से कहू कौन सत्य भलिया आ कोनोसी तपस्या नाही सत्य ठारू बळिकिरी आ कोनोसी तपस्या नाही एवं झूठ बराबर पाप माने मिथ्या ठारू बळिकरी आ कोनोसी पाप नाही तमे सत्य कहिबो ता ठारू तम जीवन सार्थक हो तमे जदि सत्य कहिथिबो ताहले तम कोन तम जीवन सार्थक ठीक अछि ताठरो बड़ तपस्या आ किछि नाही जदि तमे मिछ कहूथिबो ताहले कोन ताठरो बड़ पाप केबे हेले भी कोठी आउ तमे ताठरो अधिक बड़ पाप तमे करि पारिबो। जेतेबेले तमे गोटे थर मिछ कहिदेलो ना से मिछटा ठारू बड़ करिकि आउ पाप कोनोसी नाही ठीक अछि। ताहले तापरे कौन कहि जाके हृदय साझ है ताके हृदय आप एटे आप काहाको कहि जाइछि एटे आप भगवान को कहि जाइछि काहाको कहि जाइछि भगवान को कहि जाइछि। ताले से कहउचंदी कबीर कहउचंदी जहार हृदय रे सत्य अछि बा जिए सत्यवादी मनीष जिए सब बेले सत्य कहे ता हृदय रे सब बेले कण भगवान विराजमान करती कौन हृदय रे सब बेले भगवान थांती तार भगवान आशीर्वाद सब बेले थाए आउ जी मिछ कहला ताठारू पापी संसार रे आउ केही भी नाही। आउ तमे देखिथिबो जो माने सत्य कहंती सेमानंकु कण लोक माने आदर करंती। तमे मिछुआ राधुआ गप सुनिथिबो पिला बेले तमे मिछुआ राधुआ गप सुनिथिबो से कण जाए मेढ जगिया को छेड़ी जगिया को जाए गछरे जाके बसी पड़े तापरे गोटे थर डाकिला बाघ हसिला मते आड बसिला लोक माने दौड़ी के आसिले ठीक अछि लोक माने भाबिले सत्य कहउछि बोली दौड़ी के से देखला किछि नाही पुणी द्वितीय थर भी सेमति कला लोक माने पुणी आसिले देखला किछि नाही तृतीय थर को जेतेबेले सत्तरे बाघ आसिला
ଯେତେବେଳେ ସେ ମରଣ ମୁଖରେ ପଡିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା କିଏ ଆସିଲେ? କେହି ଆସିଲେନି, କାରଣ ସେ ଦିଥର ଏମିତି କଲା, ଦିଥର ଯାକ ମିଛ କଲା। ତାହେଲେ ମିଛ କହିବାର ପରିଣାମ ଜାଣିପାରିଲ କଣ? ମିଛ କହିଲେ କଣ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଅନାଦର କରିବେ। ସିଏ ମାଧୁଆ ମିଛ କହିଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ କେହି ଆଦର କଲେନି। ତିନିଥର ଯେତେବେଳେ ସତରେ ବାଘ ଆସିଲା ତା ପାଖକୁ କେହି ଆସିଲେନି, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ କେହି ଆସିଲେନି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ସତ ମାନେ କେତେ ସତ କହିବାଟା ଠିକ ଆଉ ମିଛ କହିବାଟା କେତେ ଠିକ, ତମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ସବୁବେଳେ ସତ କହିବ, ସତ୍ ବାଟରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି? जो तोको कांटा बुवे ताही बोए तो फूल, तोको फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। ता माने टिके तुमको दोहा गुड़ाक बुझे कष्ट होतबो किंतु किछि नाही, बहुत सहज। ठीक है, ता अर्थ कौन देछि हमें देखिबा। ता अर्थ देछि यह सत्य है, प्रमाणित है कि अच्छे काम करने वाले को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वाले को बुरा फल मिलता है। अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी, कहावत है जैसी करनी वैसी भरनी। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करो। इसी का नतीजा होगा, यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा, उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ। ताहले आर अर्थ कौन? ए जो तोको काटे बुबे तो ताही बोए तो फूल, ता माने कविटी कहउछन्ती जिए तो पथरे कंटा बिछौछि, जी तोते कंटा फुटेइबाकू चेष्टा करुछि, ता माने कोन छुंची फुटेइ देबो सेमति नुह। जी तोर अहित करबाकू चेष्टा करुछि, जी तोर खराब चिंता करुछि, तू कोन कर तार भलो चिंता कर। मो पाई कि खराब चिंता करुछुटी करू, ता खराब चिंता करिवार ता कर्मर फल ताको मिलियो। मु जदि तार पुणी कर्म ता पई मु खराब चिंता करबी, ताले मो खराब चिंतार फल भी मते मिलिबो, मो कर्मर फल भी मते मिलिबो। सी जदि मो पई कोन खराब चिंता करूची, मु कोन करबी ता पई भलो चिंता करबी, ताहले ता कर्मर फल ताको मिलिबो, मो कर्मर मु जो भलो चिंता करिची मो कर्मर फल मते मिलिबो। ताहले सेई कथा से कवि कहउछन्ती कि एटा सत्य, एटा सत्य जे कोन जी भलो काम करे ताको भलो फल मिले, आउ जी खराब काम करे ताको खराब फल मिले। मने कर तमे मन लगी पूरा पाठ पढुछ, ठीक अछि, तमर दशम हैला, तमे पूरा मन लगी पाठ पढुछ, बोर्ड एग्जाम अछि, जी मन लगी पाठ पढिथिबो वर्ष जाक जी परिश्रम करथिबो ताको भलो फल मिलिबो ना नाही? मिलिबो, निश्चित भाବରେ मिलिबो, एथरे कोनोसी संदेह नाही। ठीक अछि, जी कोन वर्ष जाक याडे साडे बुलिबो, हे ज्ञान करिबो, अलसुआ हब, पाठ पढिबनी, सी जदि बोर्ड पाखरे जे खातारे लेखिबो, लेखि पारिबो किछि? पाठ पढिथिले त लेखिबो ना नाही, परिश्रम करिथिले त लेखिबो ना नाही। परिश्रम करि नथिबो, लास्ट को जाके कोन ताको फल मिलिबो? आलू सुना मिलिबो। ठीक अछि, सेई कथा कुहा हेछि जे जी भलो काम करे से भलो कामर फल ताको निश्चय मिले, आउ जे खराब काम करे से खराब काम ର ଫଳ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କହାବତ ଅଛି ହିନ୍ଦୀରେ କଣ, ଜैसी करनी वैसी भरनी, ମାନେ ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ପାଇବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ କବିର ଏଠି ଆଉ କଣ କହିଛନ୍ତି? କବିର କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ତୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ବିଛଉଛି, ମାନେ ଯିଏ ତୋର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତୁ କଣ କର ତାର ଭଲ ଚିନ୍ତା କର। ଠିକ ଅଛି, କଲେ କଣ ହବ, ଏର ଫଳ କଣ ମିଳିବ? ତମର ଭଲ କର୍ମରୁ ତମକୁ କଣ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ସିଏ ଯୋଉ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାର ଖରାପ କାମରୁ କଣ ତା ଖରାପ କର୍ମରୁ ତା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଫଳ ମିଳିଯିବ। ତା ମାନେ ଭଲ କର୍ମ କର, ଭଲ ଫଳ ପାଅ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। କବି କଣ କହିଛନ୍ତି ଏଠି? କବିର କହିଛନ୍ତି ସତ କଥା ସବୁବେଳେ କୁହ, ଆଉ ଯିଏ ତମର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛି
ତା ଖରାପ ଚିନ୍ତା न करके तमे भलो चिंता कर सब बळे भलो कर्म कर मिछ कुह नाही भलो कर्म कर अबाटरे जाओनी परिश्रम कर हेले कोन हबो तम कर्मर फल तुमको अवश्य मिलिबो ताले बुझा पड़ी गला कोन थिला एडी शब्द तापरे हमरो तापरे कोन देछि तापर चरण देछि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुए ता अर्थ कौन कबीर दास का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है इसके लिए उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ पे समय के पहले जल्दी फल नहीं लग जाते इसलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते ता माने एठी ए जो दोहा देछि ए दोहार माने कोन ता माने होची कबीर दास कहिछन एठी कि सब काम धीरे धीरे हुए ठीक अछि सब काम धीरे धीरे हुए आउ सब काम करबा पई कोन धैर्यर आवश्यकता अछि हमको धैर्य रखी ବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହବା ତାହେଲେ ସେ କାମ କେବେ ହେଲେ ବି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ କି ସେ କାମର ଫଳ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ କଣ କାମ କରିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ଠିକ ଅଛି ଫଳ ଗଛ ଲାଗିଛି ମାଳି ଆସିବ 100ଟା ମାଠିଆ ପାଣି ଦବ 100 ମାଠିଆ ପାଣି ସେଥିରେ ଦବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ପଳେଇ ଆସିବ କି ମାଳି ପାଣି ଦଉ ଦଉ ଫଳ ପଳେଇ ଆସିବ କି ନା କେବେ ହେଲେ ବି ଆସିବନି ଫଳ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ଋତୁ ଆସିବ ଫଳ ଆସିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଋତୁ ଆସିବ ଧର ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେବେ ଫଳ ଆଉଛି ଏବେ ପାଚୁଛି ଫଳ ଏବେ ପାଚୁଛି ନା ନାଇଁ ଏଇ ଖରା ଦିନରେ ଫଳ ପାଚିବ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛଟି ଲଗେଇବି ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଦେହରେ 100 ମାଠିଆ ପାଣି ଦେଇଦେବି ଫଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ କି ମତେ ମିଳିବନି ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଗଛ ଲଗେଇଲି ଗଛ ବଡ ହବ ବଉଳ ଧରିବ ଆମ୍ବ ହବ ଖରା ଦିନ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମ୍ବ ପାଚିବ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ସେଇ କଥା କବୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି କି ମାଳି 100 ମାଠିଆ ପାଣି ଦେଲେ ବି ଗଛରେ ଫଳ ଆସି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଗଛରେ ଫଳ ଆସିବାକୁ କଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ ଉପଯୁକ୍ତ ଋତୁ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ ସମୟ ଆସିଲେ ହିଁ କଣ ଗଛରେ ଫଳ ଧରେ ତାହେଲେ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରି ଚାଲିବା କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳକୁ ଆଶା ନ କରି ଆମକୁ ଫଳ କଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ହିଁ ଆମକୁ ତା ଫଳ ଆମର ସମୟ ଆସିଲେ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଟା ଥିଲା ତମର अनमोल बाणी रो फर्स्ट दोहा जोटा कि कबीर दास करथिला किछिटा शब्दार्थ हेडी देछि सांझ सांझ मतलब सत्य बराबर मतलब समान तप मतलब तपस्या और ज्ञान झूठ मतलब जानिछो मिथ्या पाप माने जानिछो कोन कुकर्म और पातक एडी पढ़ी परिबो कोन प्रतिशब्द पर्यायवाची शब्द पाप रो पर्यायवाची शब्द कोन हबो पातक हबो कुकर्म हबो अघ हबो बुझ पारलो तापरे जाके जाके मतलब जिसके हृदय मतलब हृदय ताके मतलब उसके जाके मतलब जिसके ताके मतलब उसके आप कहिदिले आप मैंने भगवान बा ईश्वर तोको मतलब तुझको कांटा कांटा मतलब जानछो कंटक बा कंटा बुबे माने बोता है जे बिछाए ताही मतलब उससे बोए बोए मतलब बो मतलब जो कांटा बिछाए में लगाए ठीक अछि तो को मतलब तुझको बाको मतलब उससे बा उसको उस बा उसको त्रिशूल मतलब त्रिशूल बा त्रिकोण मना मतलब मन होए मतलब होता माली जाने थे कौन माली जिए पेड़ पौधे लगाने या सींचने वाला माने पौधों का जो ख्याल रखता है उसको माली कहते हैं ठीक अच्छी घड़ा मतलब मटका और कलश एटी घड़ा गोटे पर्यायवाची शब्द आसबो कौन कौन हबो मटका हबो कलश हबो गागर हबो और
जलपात्र हब एटी पाप पाप रो पर्यायवाची शब्द कौन हब पातक कुकर्म और अघ बुझिपाल आई थिंक समस्ते बुझी पारिथिबो थैंक यू जय जगन्नाथ पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे रहूची धन्यवाद।